Namaste. I J Neha Sharma, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. So our today's topic is instruction code. So instructions हमने पढ़ा था last lecture में what are the computer instructions, what are the field of computer instructions and how to exactly display the instruction code and how to give input, right? So there are three parts of the instruction: opcode, operand, and the mode of the instruction, right? So here we can study the instruction code for a particular instructions, like for the register, for memory, for input output. So a set of instructions that specify the operations, operand, and the sequence by which processing has to occur. तो इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है? प्रोग्राम हमें पता है, प्रोग्राम में क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें क्या होंगे, ऑपरेशन, ऑपरेंड एंड द सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म, राइट? So instruction code is a group of bits that tell computer to perform a particular operation part, like for addition, subtraction, multiplication, right? So instruction code का first part जो है वो क्या है, operation code, ऑप कोड, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस में. So the operation code of an instruction is group of bits that define operations such as addition, subtraction, multiplication, shift and complement. ये हमने रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस में पढ़ा है. The given number of bits required for the operation code depend upon the total number of operations available on the computer. The operation code must consist at least n bit of a given to the power n operation. The operation part of instruction code specifies the operation to be परफॉर्म. ये हमें पता है ऑपरेशन पार्ट में क्या होता है कि मुझे रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कराने हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कराने हैं, वो होता है. और ऑप कोड में क्या होता है, ऑपरेशन कोड होता है, जो कि कैसा होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो अवेलेबल होंगे पर्टिकुलर कंप्यूटर पे उसके हिसाब से उसकी नंबर ऑफ बिट्स डिपेंड करेंगी. और ऑपरेशन कोड क्या कंसिस्ट करेगा, जिसका एन बिट्स होगी टू द पावर एन ऑपरेशन. ओके. Then next is register part. So the operation must perform the data storage in register, क्योंकि register जो है वो temporary आपका data store करता है. So instruction code therefore specify not only operations to be performed but also register where the operand will be found as well as the register where the result should be stored. तो दोनों चीजें हैं यहाँ, जहाँ पे आपका इनपुट इंस्ट्रक्शंस है वो और जहाँ पे आपका रिजल्ट स्टोर हो रहा है वो भी. ठीक है. तो इसके पास में क्या होता है, ये सब कौन परफॉर्म करता है, रजिस्टर्स स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शन कोड के लिए कि कौन से ऑपरेशंस जो है वो आपके परफॉर्म है, मतलब आपका जो इनपुट है वो भी और जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है वो भी रजिस्टर में स्टोर होते हैं. तो स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम कि किस तरीके से हमारे प्रोग्राम जो है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर होते हैं रजिस्टर्स में. The simplest way to organize a computer is to have processor register and the instruction code with two parts. First is specify the operation to be performed and second is specify the address. यहाँ पे आप देख रहे हैं opcode and the address and the memory tell where the operand in memory will be found. और ये memory बताएगी कि मेमोरी एड्रेस बताएगा कि आपका ऑपरेंड जो है वो पर्टिकुलर मेमोरी में कहाँ पर है. एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन वन सेक्शन ऑफ मेमोरी एंड डेटा इन अनदर. इंस्ट्रक्शन एक पार्ट में होता है और डेटा दूसरे पार्ट में होता है मेमोरी के. ठीक है. अब कंप्यूटर विद अ सिंगल प्रोसेसर रजिस्टर, ऐसे कंप्यूटर्स जो कि सिंगल मेमोरी रजिस्टर्स के साथ में होता है उसे क्या बोलते हैं हम, अक्यूमुलेटर. And the operation is performed with the memory operand and the content of accumulator. ठीक है. तो ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो कैसे परफॉर्म होगा, उसमें मेमोरी और अक्यूमुलेटर के साथ में. अब बात आती है बस सिस्टम की. कॉमन बस सिस्टम. कॉमन बस सिस्टम क्या होता है कि हमें क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है. जैसे हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए बस की जरूरत होती है, राइट, या कार या कोई भी व्हीकल जो भी आप प्रेफर करना चाहें. बट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए या मेमोरी से रजिस्टर में जाने के लिए, रजिस्टर से मेमोरी में आने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर
स्टोरेज मीडियम से दूसरे पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम में जाने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर मुझे अपना लैपटॉप का डेटा कहीं और ट्रांसफर करना है तो मुझे क्या चाहिए, वाईफाई चाहिएगा और हार्ड डिस्क चाहिए, राइट। या फिर मुझे पेन ड्राइव चाहिए जहाँ पे मैं अपना डेटा स्टोर कर सकूँ। तो डेटा ट्रांसफर के लिए मुझे मीडियम चाहिए, चाहे वो पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, जहाँ पे मैं अपना डेटा स्टोर करूंगी। और मुझे वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी या तो यूएसबी चाहिए या वाईफाई चाहिए या तो पर्टिकुलर मुझे डिवाइस चाहिए, राइट। तो ये क्या है, वो जो डिवाइस है, जो मीडियम है, जो आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए काम आ रहा है, वो क्या है, आपकी बस, एक तरीके से कंप्यूटर में। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर जो होता है उसके पास में 8 रजिस्टर होता है और एक मेमोरी यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। तो पाथ जो है वो मस्ट प्रोवाइडेड टू द transfer data from one register to another. An efficient method for transferring data into a system is called common bus system. और पूरे, अब यहाँ पे जैसे बोला कि एक कंप्यूटर के पास में 8 रजिस्टर है प्लस क्या है, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट है। तो ये कॉमन बस आपको प्रोवाइड कराएगा इन 8 रजिस्टर्स के साथ में आपका डेटा शेयर करने के लिए, कि आप इनसे अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है, द आउटपुट ऑफ रजिस्टर्स एंड मेमोरी, वो कनेक्टेड किससे है, कॉमन बस से। आपको 8 रजिस्टर्स में जाना है, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, तो उसके लिए डेटा ट्रांसफर इन सिस्टम के लिए आपको कॉमन बस सिस्टम यूज करना होता है। सेकेंड इज लोड। अब इसमें क्या है कि आपकी जो कॉमन बस जो कि कनेक्टेड है आपकी इनपुट आउटपुट और कंट्रोल यूनिट से एंड रजिस्टर्स के साथ में, तो डेटा को हमें लोड भी तो करना पड़ेगा। अगर हमें एक्सटर्नली डेटा लोड करना है तो हम क्या करेंगे, सीएसवी से एक्सपोर्ट करेंगे, देन इंपोर्ट करता है हम, जैसे कि हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें, डेटा लोडिंग के लिए हम इंपोर्ट यूज लेता है, चाहे वो कोई भी लाइब्रेरी हो, चाहे एक्सटर्नल डेटा हो या फिर कोई पैकेज हो, हम लोड करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज लेते हैं। वैसे यहाँ पे क्या होता है, डेटा को लोड करने के लिए एलडी होता है, लोड। ठीक है, तो एलडी इनपुट जो है पर्टिकुलर रजिस्टर को देंगे तो वो क्या करेगा, डेटा को लोड करेगा। पहले तो इनेबल करेगा, वो रिसीव करेगा डेटा, इनेबल करेगा डेटा रिसीविंग फ्रॉम द बस ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लॉक पल्स ट्रांजिशन। ठीक है, and before studying about instruction format, let's study the operand address part. So when the second part of instruction code is specify the operand, the instruction is set to immediate operand, and when the second part of instruction code is specified the address of operand, then instruction is said to have direct and indirect address. मैंने आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस में भी बताया था कि मोड जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होती है, डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है, राइट। The second part of instruction is specify the address of memory word in which the address of the operand is found. जैसे वहां पे क्या था, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में I था, I for indirect addressing, and डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन के लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन एक पार्ट में और ऑपरेंड अदर पार्ट में, और वो डिसाइड करेगा ऑपरेशन जो है कि वो बताएगा आपको बेसिकली कि आपका डेटा जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई ऑपकोड और एड्रेस की और मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और ऑपरेंड की। तो पहले वो टेम्पररी स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इमीडिएट ऑपरेंड में, और उसके बाद वो मोड सेट करेगा आपका सीयू जो है कि कौन सा मोड है, और वो क्या स्पेसिफाई करेगा, address of memory word in which the address of the operand is found. Okay, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 3 बिट्स होती है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं इसके, एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, देन रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, देन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, 3 टाइप्स में डिवाइड है। और मेमोरी रेफरेंस के लिए क्या होता है, 12 बिट्स यूज होती है, एंड 1 बिट इज फॉर स्पेसिफाइंग द एड्रेसिंग मोड, लाइक I is equal to 0 and direct address, and 1 for indirect address. ओके, तो 0 तो होता है डायरेक्ट एड्रेस के लिए और 1 क्या होता है यहाँ पे, इनडायरेक्ट एड्रेस के लिए। तो हमने वहाँ पे देखा था कि रजिस्टर के लिए क्या था, 0 था, और इनपुट आउटपुट के लिए 1 था, है ना। तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑपकोड क्या होता है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के लिए 111 विद द 0, और इनपुट आउटपुट के लिए ऑपकोड क्या, ऑपरेशन कोड क्या होता है, 111 विद 1। ये भी हमने कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के लेक्चर में डिटेल में कर लिया था। So remaining 12 bits are used to specify the input output operation.
और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है हमारा, ऑपकोड, एड्रेस फील्ड एंड द मोड। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं उसमें, है ना। तो ऑपकोड क्या होता है, ऑपरेशन बताता है जो भी परफॉर्म करना है। एड्रेस फील्ड में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो स्टोर कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, मेमोरी में है, रजिस्टर में है, वो डिफाइन करेगा। और मोड क्या डिफाइन करेगा कि डायरेक्ट एड्रेसिंग है या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, राइट। तो कंप्यूटर में हैव इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिफरेंट लाइन्स कंटेनिंग varying number of addresses. The number of address fields in the instruction format depend upon the internal organization of its register. कंप्यूटर में है कितने रजिस्टर्स, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कोड, what are the instruction codes and how these instruction codes are framed, and declaration of instruction code and the frame format of instruction code, what is common bus system, what is load, right. So in this lecture you study all these topics. So that's all for this lecture. Thank you so much.